Hi everyone, welcome back to my channel. So in the last video we talked about rent-free accommodation. So today we will be talking about the valuation of motor car, and this is also a part of perquisites. Okay. So starting with the concept, in case of valuation of motor car, there will be two categories. First will be if the car is owned or rented by the employer, and if the car is owned or rented by the car is owned by the employee. ठीक है, तो अगर कार इज ओन्ड एंड रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर, सो इन दैट केस हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मोटर कार. सो अगर इट इज़ यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, ठीक है, जो कार उसको दी जा रही है दैट ही इज यूजिंग ओनली फॉर ऑफिस पर्पस, सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी निल. ठीक है, क्योंकि ऑफिस के काम के लिए यूज़ कर रहा है. अगर वो पर्सनल अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है, सो इन दैट केस what will be the value for the motor car? The actual expenditure incurred by in running and maintenance of the car, plus if the chauffeur is being hired, chauffeur is a driver, ठीक है, so it is if that is hired, whatever the charges are for the chauffeur, that will also be included. And the main now it will is that if it is used for mixed, यानी कि partly he is using for the office purpose and partly he is using for the personal purpose, so in that case first you have to see whether the maintenance is borne by the employer या employee. ठीक है, तो अगर employer खर्चे उठाता है तो that case अगर स्मॉल कार है तो स्मॉल कार आपको क्वेश्चन में दी होगी इट इज़ अ स्मॉल कार, अदरवाइज इट विल बी गिवन दैट द इंजन कैपेसिटी इज 1.6 लीटर सीसी. ठीक है, तो अगर 1.6 लीटर सीसी तक है तो दैट इज स्मॉल, और अगर उससे ज़्यादा है तो लार्ज कार. ठीक है, तो स्मॉल कार के केस में व्हाट इज़ द वैल्यू ₹1800 पर मंथ, तो ईयर का आप निकाल लोगे इंटू 12 करके. ठीक है, एंड इफ एनी ड्राइवर इज ऑल्सो देयर, शफर इज ऑल्सो देयर, यू विल बी एडिंग 900 पर मंथ चार्जेस for the chauffeur also. And if the car is large one, then your charges will be 2400 per month plus 900 per month for the chauffeur if any. ठीक है, अगर ड्राइवर नहीं है then only 2400 per month, and for the year multiply it by 12. ठीक है, when the expenses are borne by the employee, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, स्मॉल कार के केस में you have 600 per month. ठीक है, and इन केस स्मॉल कार फिर अगेन वही 1.6 लीटर सीसी तक. ठीक है, एंड फॉर लार्ज कार इट इज़ 900 पर मंथ. ठीक, तो ये था व्हेन द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. अब अगर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, तो उस केस में अगर ऑफिशियल यूज़ के लिए ही इज़ यूजिंग देन द वैल्यू विल बी निल. अगर पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो वट एवर अमाउंट इज बीइंग रीइंबर्स्ड टू हिम बाय द एम्प्लॉयर, दैट अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ मोटर कार या वैल्यू ऑफ दैट पर्क. एंड इफ he is using it for personal as well official use, so अगर small car है तो कैसे वैल्यू निकालोगे, whatever the amount is being reimbursed by the employer, from that you have to deduct two things. Firstly, the amount straight away 1800 per month, which is the value for small car. ठीक है, and if any chauffeur is provided to him, then 900 per month also. ठीक है, तो जो भी बचेगा that will be the value for small car. लार्ज कार के केस में वट एवर द अमाउंट इज रीइंबर्स्ड टू द एम्प्लॉय, फ्रॉम दैट यू हैव टू डिडक्ट 2400 पर मंथ एंड 900 पर मंथ फॉर द शफर इफ एनी. ठीक है, सो ये था अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार. नाउ वी विल बी डूइंग वन क्वेश्चन. The question says that the expenses related to the running and the maintenance of the car are paid by the employer, that is borne by employer. Car used for official purpose. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये जो कार है इट इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, इस वाले कैटेगरी में आता है. एंड द एम्प्लॉयर जो उसको 75,000 जो था वो एम्प्लॉयर खर्चा बॉन्ड कर रहा था, यानी कि उसको रीइम्बर्स कर दे रहा था.
दैट एंड द कार वॉज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए तो वैल्यू हमेशा निल हो जाएगी, सीधे सीधे, ठीक है। सेकेंड विल बी स्मॉल कार इज प्रोवाइडेड, मिक्स्ड यूज and the employer drives the car himself, so there is no chauffeur, no driver. The employer has spent 70,000 during the previous year for the running and maintenance of the car, ठीक है। तो सिंपली स्मॉल कार है, मिक्स्ड यूज के लिए हो रही है, व्हाट विल बी द वैल्यू, 70,000 माइनस 1800 पर मंथ, यानी कि साल का आ जाएगा 21600। सो वैल्यू, फाइनल वैल्यू विल बी 48,400। सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर योर मोटर कार, ठीक है। अब अगर सपोज the car is owned by the employer का केस है, and it is a large car and the expenses are borne by the employer, ठीक है, and the car is used for the business purpose only, तो straight away the value will be nil, ठीक है। but अगर car is large, expenses are borne by the employer जो कि है 60,000 and the cost of the car is 2,80,000, the car is used for private purpose of the employee, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो आपका वॉट एवर द कॉस्ट, जो भी खर्चा कर रहा है, जैसे कि वो कितना खर्चा कर रहा था, 60,000 कर रहा था, ठीक है, प्लस तुम्हारा, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय विच आर 60,000 ड्यूरिंग द एंड द कॉस्ट ऑफ द कार इज 2,80,000, ठीक है, प्लस 10% कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यानी कि 2,80,000 कॉस्ट थी कार की, तो 28,000 हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया, 88,000 विल बी योर वैल्यू फॉर द कार। ये था प्राइवेट के लिए। अगर क्वेश्चन सेज के लार्ज कार है, मेंट फॉर बोथ पर्पस, ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट, एंड एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, सो लार्ज कार के केस में द वैल्यू विल बी 24. So it is a large car and it is used for mixed purpose, then the value will be 2,400 per month, and if you multiply it by 12 it will be 28,800. no chauffeur is there, so no 900 you will add, ठीक है, chauffeur नहीं है। I hope this topic is clear, ठीक है। do like, share and subscribe to my channel. Take care and be safe.